Hello and welcome. This is Manpreet Singh from Government College Bhadra, and in this video lecture we will move on to the third unit from BA part third English literature syllabus, paper first, poetry and drama, and we will read the poem Once Upon a Time by Gabriel Okara, a Nigeria born African poet. So first we will learn about the poet. This is Gabriel Okara. He died last year in March 2019. About his life, Gabriel Motimi Okara, he was born on 24th of April 1921 and died last year on 25th of March 2019. He was a Nigerian poet and a novelist who was born in Bumonji in Yanagoa, Bayelsa State, Nigeria. So he was born in the country of Nigeria in the continent of Africa. The first modernist poet of Anglophone Africa. Anglo means belonging to English language. So he was the first modernist poet who wrote poetry in English from African English, African Anglophone Africa. He is best known for his early experimental novel The Voice. The Voice is this novel belongs to or explores the themes of African culture clashing with the modern English or colonial culture. And his award-winning poetry published in the Fisherman's Invocation. So his modernist poetry, it was published in this periodical Fisherman's Invocation in this journal, and The Dreamer, his vision. These are his famous works. So next about the poet, in both his poems and his prose, he was also a prose writer. We'll just learn that he wrote a novel. In both his poems and his prose, Okara drew on African thought, religion, folklore and imagery, and he has been called the Nigerian negritudist. Negritudist belongs to a person. This is a kind of movement that tries to raise the black consciousness about the consciousness of African people. So he has been called a Nigerian negritudist, and his themes generally explore the thought, religion, folklore and imagery belonging to Africa. So उन्होंने अफ्रीका के बारे में जो भी विचार हैं, वहाँ की folklore, वहाँ के धर्म और इमेजरी, इन चीज़ों को काफ़ी यूज़ किया for his poetry. His poems, famous poems, Piano and Drums and You Laughed and Laughed and Laughed, become very popular. These are two of his famous poems. Okara's poetry mirrors his anxiety about colonialism. Colonialism is a term that is used to describe the colonization of different third world countries by the Europeans. Like South Africa, we have colonies that were colonized in the early 18th and 18th and 19th century, and later on we have diversity of black and white peoples living together. So colonization, जैसे जैसे अफ्रीका में अंग्रेज़ों का या ये कह लीजिए यूरोपियन लोगों का, वाइट लोगों का विस्तार हुआ, इसके प्रति ओकारा की काफ़ी एंग्जाइटी नज़र आती है, क्योंकि उन्हें फ़िक्र है कि इससे उनका खुद का कल्चर समाप्त हो जाएगा. He was quite apprehensive. Apprehensive means he was quite possessive about what would happen, क्या होगा when the ancient culture of Africa is faced with the modern Western culture. What would happen to the African culture when it will face the modern Western culture, European culture. In addition to his poetry and fiction, Okara has also written plays and features for broadcasting. So he has also written plays and movie features for feature films for broadcasting. So he was a versatile writer. This poem is about a conversation between a father and his son, where a father is telling his son how it was different in the past, how feelings were quite genuine in the past, now they are artificial, how modern man has just become artificial in his behavior, has become so made up in his behavior that the genuineness of one's happiness and one's feelings has lost in the past. So this poem, Once Upon a Time by the poet Okara, Gabriel Okara. Once upon a time, from the first line we will take, once upon a time son, the father is telling his son, एक बार ऐसा होता था या कभी कभी ऐसा हुआ करता था. They used to laugh with their hearts.
दे यहाँ जनरल पीपल के लिए है, जनरल सब के लिए आया है। सो दे यूज टू लाफ विद देयर हर्ट्स, यानी मनुष्य जो भी प्राणी जो भी लोग थे वो अपने दिलों से अंदर से खुश हुआ करते थे, हंसा करते थे। एंड लाफ्ड विद देयर आइज़, दे वुड लाफ विद देयर हर्ट्स एंड दे वुड लाफ विद देयर आइज़, अपनी आँखों से और दिल से अंदर से हंसा करते थे। बट दे नाउ ओनली लाफ विद द टीथ, अब सिर्फ दांतों से हंसते हैं। दे ओनली लाफ artificially, their laughingness, their happiness, their show of cheerfulness is not genuine, it's fake. While their icy block cold eyes, their eyes do not laugh, पहले आँखों में हंसी नज़र आती थी, अब आँखें तो कोल्ड हैं, जैसे बर्फ़ की एक ब्लॉक हो, सिल्ली हो, बर्फ़ की सिल्ली की तरह ठंडी पड़ चुकी आँखों में वो नहीं हंसते, वो हंसते हैं गर्मजोशी से नहीं हंसते, वो सिर्फ दांतों से हंसते हैं। सर्च बिहाइंड माई शैडोज, जब वो हंसते हैं सो उनकी हंसी में नज़र आता है कि वो मेरे अंदर सर्च बिहाइंड माई शैडो, वो मेरे अंदर की नेगेटिविटी को देखना चाहते हैं, या फिर वो मेरे साथ खुश नहीं है, एक्चुअल में वो खुशी को सिर्फ फेकली शो कर रहे हैं कि उनकी खुशी में वो मेरी शैडो देखना चाहते हैं, या वो मुझे जाता हुआ देखना चाहते हैं, या वो मेरी नेगेटिविटी देखना चाहते हैं, या वो मेरा बुरा चाहते हैं। एग्जैक्टली वो रियल में नहीं, जेन्युइनली वो उन इमोशंस के साथ नहीं हंसते। नेक्स्ट लाइन्स, देयर वाज अ टाइम, एक समय ऐसा था, इंडीड वास्तव में ऐसा था, दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स, जब वो हाथ भी मिलाते थे तो अपने दिलों से गर्मजोशी के साथ, अपने दिल से अंदर से खुशी के साथ हाथ मिलाते थे। बट दैट्स गॉन सन, लेकिन वो भी चला गया, वो वक्त भी चला गया, वो समय भी बदल गया। नाउ दे शेक हैंड्स विद हार्ट्स व्हाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स, अब नाउ दे शेक देयर हैंड्स, नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स, अब वो बिना दिल के अंदर से खुशी के साथ जेन्युइनली हाथ नहीं मिलाते। दे जस्ट प्रिटेंड टू शेक योर हैंड, दे जस्ट प्रिटेंड टू बी हैप्पी टू सी यू, बट दे आर नॉट हैप्पी व्हाइल देयर लेफ्ट हैंड्स, दायां हाथ अगर वो मिलाते हैं, इवन इफ़ दे शेक देयर राइट हैंड्स विद यू, देयर लेफ्ट हैंड्स सर्च योर एम्प्टी पॉकेट्स, यानी कि दे शो selfishness even when they shake your hands, even when they come to you, they meet you, they show their selfishness, कि लोग उन्हीं से हाथ मिलाते हैं जिनसे उन्हें कोई फ़ायदा हो। ये सेल्फिशनेस सब लोगों के जीवन में नज़र आती है। सो कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो अफ्रीकन इनोसेंस थी वो कहीं ना कहीं खो गई है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में जो यूरोपियन लोगों का विस्तार हुआ उसके बाद से ये फेकनेस, ये आर्टिफिशियलनेस लोगों के इमोशन में, बिहेवियर में आ गई है। फील एट होम, कम अगेन, लोग ऐसा बोलते हैं कि आइए घर जैसा ही फील कीजिए, मतलब आराम से तक, जैसे हम बोलते हैं कि आइए घर में, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तब हम उन्हें कंफर्टेबल होने के लिए बोलते हैं। फील एट होम, कम अगेन, फिर हम बोलते हैं फिर आना, आपके आने से अच्छा लगा, देर से वो बोलते हैं। एंड व्हेन आई कम, लेकिन वास्तव में जब मैं दोबारा जाता हूँ, जब मैं दोबारा आता हूँ, अगेन एंड फील एट होम, दोबारा जाके फिर फील एट होम फील करता हूँ। वंस, एक बार, दो बार, देयर विल बी नो थ्राइस, वंस ट्वाइस बट देयर विल बी नो थ्राइस, तीसरी बार तो मुझे घर में आने नहीं दिया जाता या घर में नहीं बुलाया जाता। For then I find doors shut on me, क्योंकि तब मैं जब जाता हूँ I find the doors are shut on me, I am no more invited, I am uninvited, I am not welcomed at that house। सो लोगों की जो फेकनेस है वो नज़र आती है, लोगों की जो आर्टिफिशियलनेस है, लोगों की जो बिहेवियर में जो मैनर्स भी जो हैं वो जेन्युइन ना होकर फेक हैं, ये नज़र आता है जब वो कहते हैं कि घर आना या फिर दोबारा आना या फिर कंफर्टेबली हो। अगर आप वास्तव में दोबारा चले जाएं और कंफर्टेबल होकर उनके घर में बैठ जाएं, they would not appreciate your behavior, and by and by you will be no more welcomed at that house। नेक्स्ट लाइन्स, सो आई हैव लर्न, सो पोइट कहता है अपने बेटे से, जो भी नरेटर है वो कहता है, सो आई हैव लर्न, अब मैंने ये सीख लिया है, क्या सीख लिया है, मैनी थिंग्स सन, आई हैव लर्न मैनी थिंग्स। पहले मैं उनकी बातों को जैसे था वैसे मान लिया करता था, वो कहते थे कि दोबारा आइए, वो हाथ मिलाते थे, या उनके चेहरे की नकली सेल्फिशनेस या उनके चेहरे की जो गर्मजोशी है वो मैंने अब पकड़ ली है। आई हैव लर्न, आई हैव बिकम मोर एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ, सो आई हैव लर्न मैनी थिंग्स सन,
आई हैव लर्नड टू वियर मैनी फेसेस, मैंने सीख लिया है कि मैं और कैसे अलग अलग चेहरे, कैसे अलग अलग मुखौटे पहनूं। लाइक ड्रेसेस, जैसे मैं कपड़े बदलता हूं वैसे मैं चेहरे भी बदलता हूं। इसका कारण समाज है, समाज की सेल्फिशनेस है, समाज की आर्टिफिशियल बिहेवियर है, समाज की फेकनेस है। मैंने भी सीख लिया है, आई हैव लर्न, मैंने ये सीख लिया है टू वियर मैनी फेसेस, अलग अलग चेहरे पहनना। लाइक ड्रेसेस, जैसे ड्रेस पहननी हो। होम फेस, घर पे मैं घर वाला चेहरा पहनता हूँ। ऑफिस फेस, ऑफिस में मैं ऑफिस वाला चेहरा पहनता हूँ। स्ट्रीट फेस, स्ट्रीट में मैं उस प्रकार से बिहेव करता हूँ, स्ट्रीट में जैसे मुझे करना है वहाँ भी मैं फेक बिहेव करता हूँ। होस्ट फेस, जब मैं मेज़बान होता हूँ तो मैं मेज़बान की तरह बिहेव करता हूँ। कॉकटेल फेस, जब मैं पार्टीज़ पे होता हूँ। कॉकटेल यानी कॉकटेल, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइन्स आर मिक्स टुगेदर टू मेक अ न्यू ड्रिंक, दिस इज़ कॉल्ड कॉकटेल। तो कॉकटेल फेस जो है, मैं जब पार्टीज़ में होता हूँ तो मैं पार्टी वाला बिहेव करता हूँ। जब मैं ऑफिस में होता हूँ ऑफिस वाला, होम पे होता हूँ होम वाला, स्ट्रीट में होता हूँ स्ट्रीट फेस। सो अलग अलग बिहेवियर मैं करने लगा हूँ बिकॉज ऑफ द डिफरेंट, बिकॉज ऑफ द फेकनेस ऑफ द सोसाइटी। आई हैव लर्न दिस लेसन दैट आई हैव टू बी लाइक देम if I want to live in the society with all their conforming smiles like a fixed portrait smile। उन सब की कन्फर्मिंग स्माइल्स के साथ मैंने भी ये सीख लिया है चेहरे को पहनना लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल। जैसे किसी तस्वीर में एक फ़िक्स हो चुकी स्माइल होती है जिसे बदला नहीं जा सकता, वैसे उस तस्वीर की फ़िक्स स्माइल लेके मैं चेहरे के ऊपर एक नकली स्माइल ओढ़ के रखता हूँ। उस मुस्कुराहट के साथ मैं लोगों के साथ बिहेव करता हूँ। एंड आई हैव लर्न टू, और मैंने ये भी सीख लिया है टू लाफ विद ओनली माई टीथ, मैंने भी सीख लिया है सिर्फ अपने दांतों से हंसना। Really, not from my heart, not from the genuineness of my soul, but only from my teeth. And shake hands without my heart. And I have also learned to shake hands without my heart. बिना दिल से हाथ मिलाए खुशी के मैंने हाथ मिलाना सीख लिया है। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से, मैंने ये भी सीख लिया है, ये कहना भी सीख लिया है गुड बाय, मैंने गुड बाय कहना भी सीख लिया है। व्हेन आई मीन गुड रिडेंस, जब एक्चुअल में ये कहता हूँ अच्छा हुआ इससे पीछा छूटा, तब भी मैं ये कहता हूँ गुड बाय। यानी कि मैंने भी उनकी तरह फेकली, उनकी तरह एक डिफरेंट आर्टिफिशियल बिहेव करना शुरू कर दिया है, प्रिटेंड करना शुरू कर दिया है, ना कि जेन्युइनली। टू से ग्लैड टू मीट यू, ये कहना भी मैंने सीख लिया है। आई हैव लर्न टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड, जब मैं किसी को कहता हूँ कि आपसे मिलके अच्छा लगा, जबकि मैं खुश नहीं होता, कि मुझे रियल में अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैंने ये कहना सीख लिया है। एंड टू से, और मैंने ये कहना भी सीख लिया है इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, कि आपसे बातें करना अच्छा लगा। आफ्टर बीइंग बोर्ड, जबकि मैं बातें करते हुए बोर हो रहा था तब भी, उसके बाद भी मैंने सच बोलने की बजाय फेकली और इस प्रकार से बोलना सीख लिया है कि रियल में मैं नाइस टॉकिंग टू यू कह देता हूँ, जबकि मुझे रियल में मैं बोर हो रहा था। इट वॉज नॉट नाइस, इट वॉज नॉट, इट हैज़न बीन वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, ये कहने की बजाय मैं कहता हूँ इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू। बट बिलीव मी सन, लेकिन आखिर में कवि कहता है कि चाहे मैं ऐसा करने लगा हूँ, मैंने सीख लिया है, लेकिन मेरी बात पे विश्वास करो बेटा, दिल से मैं चाहता हूँ आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज़ टू बी, मैं वो बनना चाहता हूँ, अब मैं वो बनना चाहता हूँ जो मैं पहले हुआ करता था। व्हेन आई वॉज लाइक यू, जब मैं तुम्हारी तरह बच्चा था, छोटा था, तब जैसे मेरे अंदर जेन्युइननेस थी, मैं वापस वही, हालांकि मैंने सीख लिया। ऑल्दो आई हैव लर्न टू प्रिटेंड, ऑल्दो आई हैव लर्न टू फेक माई बिहेवियर, बट आई really want to be like you, I really want to be what I used to be, मैं वैसा ही होना चाहता हूँ जैसा मैं हुआ करता था। I want to unlearn all these muting things, ये जो muting silent things जो है, या without voices things जो है, ये जो नकली बिहेवियर है मैंने सीखा है, ये जो मेरा फेक मैनर है, इस सब को मैं अनलर्न करना चाहता हूँ। जो मैं सीखा हुआ है उसे मैं भूलना चाहता हूँ कि मैं कभी सीखा ही ना हो, अनलर्न करना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल, इन सबसे ज़्यादा आई वॉन्ट टू रीलर्न, मैं सबसे ज़्यादा जो सीखना चाहता हूँ, रीलर्न, दोबारा सीखना चाहता हूँ हाउ टू लाफ, कैसे हंसा जाता है। फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज़ ओनली माई टीथ लाइक अ स्नेक्स बेयर फैंग्स, क्योंकि जब मैं हंसता हूँ तो आईने में मेरी सिर्फ दांत नज़र आते हैं, मेरी जेन्युइन हंसी नज़र नहीं आती, और वो भी कैसी, सिमिली यहाँ पे है, लाइक अ स्नेक्स बेयर फैंग्स, जैसे
एक सांप के सिर्फ दांत होते हैं, फैंक्स दांत होते हैं, सांप के सिर्फ दांत नज़र आए, उसकी जहर या रियलिटी नज़र ना आए, उस प्रकार से फेक स्माइल जो है, फेक स्माइल ऐसे है जैसे सांप के दांत हो। यही एक सिमिली के ज़रिए ये बता दिया कि रियल स्माइल से तो फेक स्माइल एक सांप के दांतों की तरह है, डेंजरस है, उसमें रियलिटी नहीं है। सो अंत में एट लास्ट द पोइट टेल्स हिज सन टू शो मी सन, मुझे बताओ हाउ टू लाफ, मुझे सिखाओ कैसे जेनुअली हंसा जाता है। शो मी हाउ आई यूज़ टू लाफ एंड स्माइल वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू, कि मुझे भी बताओ हाउ आई यूज़ टू लाफ, कैसे मैं हंसा करता था, एंड हाउ आई यूज़ टू स्माइल वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू, जब मैं तुम्हारे जैसा हुआ करता था। वंस अपॉन अ टाइम, जिस कभी समय एक बार ऐसा हुआ करता था। व्हेन आई वाज लाइक यू आई हैड द जेन्युइननेस ऑफ माई स्माइल, आई हैड द जेन्युइननेस of my emotions, and I could show my emotions without being worried about the others' feelings. So please tell me, please teach me again how to laugh like you. So this is the poem, very simple poem by Nigerian African Gabriel Okara, and I believe and I hope you will read this poem, and it will not put any problems behind you in front of you when you will read this poem. आप इस poem को पढ़ें, और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वैसे ही वीडियोस में काफ़ी व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, आप व्यूज़ ज़रूर दें। ज़्यादा समय, ज़्यादा लंबी पोएम में नहीं, ज़्यादा लंबी जो है वीडियोस नहीं डाली जाती, मैक्सिमम 15 मिनट की वीडियोस होती हैं। सो आप थोड़ा 15 मिनट निकाल के वीडियोस को ज़रूर देखें। थैंक यू।